Hello guys, I welcome you all to the day 237 of our series, and in today's session we are going to continue what we started in our previous session. That means the cases of so. So let's get started, and here is your yesterday's task where you had to correct these sentences. So first one is already given, one example is already given, that I have always paid my own way. Only is incorrect version here. Next is, where am I going to lay my hand on $5,000? So correct version would be lay my hands on. You have to use the plural version of hand. Next is, I had to fork over 30 pounds just to get into the club. So the correct version would be fork out, not over. Next is, so he still has to pay off most of his debts. And next is, a lot of families are living on the bread queue. So the correct phrasal verb would be living on the bread line. Next one is, if she spends her salary, she will have no money to fill back on. The correct version would be to fall back on. Next is, now she has got promotion, she will be better on. So the correct version would be better off with double F. And now let's move to the next exercise. Here you were supposed to fill in the blanks and create a meaningful paragraph. So when my daughter left university, she said she would soon be able to pay off her debts, and then she would dash much be able, so she would pretty much be able to pay her own way. But things didn't work out like that after she had forked, or you can also use paid out. So after she had either forked out or paid out almost all her salary on rent, travel and food, she was dash off than before. She was worse off than before, as she hadn't saved anything at university. She had nothing to fall back on, nothing, that is, except her parents. We were naturally the ones who had to bail her out. And now let's get back to the part of adverbs. So we had already started the cases of so in our previous session, and now let's continue the same. So today's new phrase would be I told you so. So when do we use this phrase? We generally say this when we want something about something but they didn't listen to that. मीन्स हम कई बार कहते हैं ना कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये बुरा होना ही है, तो वही चीज है जहां पे हम ये कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, I told you so, वहां पे हम इसको यूज करते हैं. If someone disagrees with you or refuses to do what you suggest, जो आपने suggest किया हो एक टाइम पे और कोई पर्सन है वो उसको करने से मना कर देता है, and you are eventually proved to be right, और लास्ट में आप सही साबित होते हो, in that case you can say that I told you so, I have warned you already. For example, you were right after all. So the other person's reply would be, see, I told you so, कि मैंने तो पहले ही कहा था. I knew that was a bad idea, I told you so, you should have listened to me. Next one is, that car I bought online turned out to be a complete piece of junk. तो आंसर आता है सामने से, सी आई टोल्ड यू, देखा मैंने कहा था कि ऑनलाइन इस तरह से मत खरीदो. Last one would be, oh no, the game I downloaded had a virus in it. So the answer would be, so the reply of your friend would be, I told you so. Next time, don't go downloading free games of shady websites. So I told you so is a classic way to say that I already warned you, but you didn't listen to me at that time. And the next case would be, so and so, so. दोनों अलग अलग हैं ये. So first, let us understand the usage of so and so. First of all, just keep one thing in your mind, that both of these phrases are informal expressions. So the usage of so and so
comes in the picture when we don't want to take the particular name of that person. We don't want to address that person with the real name because the name is not that much of importance, or you probably have forgotten it. या तो नाम इतना important नहीं है, या आप उसको भूल गए हो, इस वजह से आप उसका नाम नहीं लेना चाहते, तो वहां पे उस person के नाम की जगह आप यूज कर सकते हो so and so. For example, what has happened to old so and so who you used to play chess with? क्यों तुम्हारे उस पुराने जो दोस्त तुम्हारा जो दोस्त होता था उसका नाम मुझे नहीं ध्यान है, या फिर नाम इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि उसको क्या हुआ. So you can address to that person by saying so and so. Next one is so. इसे हम यूजुअली क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, और क्वालिटी होती है लगभग लो क्वालिटी की, एवरेज से लो क्वालिटी के बीच की. नॉट गुड और वेल मीन्स एवरेज, मीडियोकर क्वालिटी जो होती है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू फीलिंग? So, that means I'm not feeling too well. Next is, was the concert any good? It was so means not that good but not bad either. And now let's move to the next usage of so. So after say and tell, like say so or tell so, इनको आप कब यूज करते हो? So can be used after say and tell instead of repeating the information. So again, in order to avoid the repetition of something, we usually say so or tell so, and the past version of them. She is going to be the next president. Everybody says so. यानी कि हर कोई ऐसे ही कह रहा है. अब देखिए, एक तो आप ये कहो she is going to be the next president. Everybody says that she is going to be the next president. तो यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन को रिपीट किया है. So instead of repeating the same information again, we can just say everybody says so. Next is, you have got to clean the car. Who says so? Means who says that I have to clean the car? So instead of just repeating the same set of words that you have just used earlier, you can just directly say like who says so. Next is, taxes are going up. Bob told me so. तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे. Tell past version आप told use करो, say के केस में past version said use करो, and then just add so after them. So is used in this way when we are talking about the authority for statements. कि ऐसा या तो सब कह रहे हैं जैसे इसमें था everybody says so, या फिर किसने कहा ऐसा who says so, या जिसका नाम लेके, जिसने भी कहा हो उसका नाम लेके that person told me so. इस तरह से हम यानी कि ये दिखाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दी है, इस पे किसकी अथॉरिटी है, वो दिखाते हैं हम इसको यूज करके say so and tell so से. फॉर एग्जाम्पल, Jane is crazy. Who says so? किसने कहा ये? Similarly, who said that? अगर पास्ट की बात है तो who said that और who said so आप ये भी कह सकते हो. And now let's move to the next part. Previously we have learned the cases of say so and tell so, but we can also use such kind of combination with believe, hope, expect, imagine, suppose, guess, reckon, think and be afraid. आप इन सभी के साथ में so को यूज कर सकते हो instead of just repeating the information again and again. For example, is Alex here? I think so. यानी कि हाँ मुझे लगता है शायद वो है, या फिर अगर आपको नहीं लगता तो आप सिंपली कह सकते हो I don't think so. Do you think we'll all have good weather? Yes, I hope so. तो हमने यहाँ पे hope के साथ में इसको यूज किया है. Similarly आप expect के साथ यूज कर सकते हो. अच्छा ध्यान देना, expect किसी से कुछ आशा रखना. एक होता है accept किसी से कुछ स्वीकार करना. So did you lose? I'm afraid so. I'm afraid so ये यूजुअली हम कुछ बैड न्यूज को देने से पहले थोड़ी सी पोलाइटनेस को शो करने के लिए यूज करते हैं. I'm afraid so. Show me what is in your pockets. I thought so. You have been stealing biscuits again. कि मैंने सोचा ही था, मुझे लगा ही था.
तो उसी का इंग्लिश वर्जन है आई थॉट सो, कि मुझे लगा ही था कि तुमने फिर से स्टीलिंग चोरी स्टार्ट कर दी है। एंड नाउ लेट अस लर्न द नेगेटिव स्ट्रक्चर्स। सो नेगेटिव एक हम यहाँ यूज कर चुके हैं, आई डोंट थिंक सो। सिंपली आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में नो लगा दोगे सो से पहले, एज सिंपल एज दैट। सो यू वॉन्ट बी हेयर टुमारो। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कल तुम यहाँ नहीं होगे, आई डोंट सपोज सो, तो सिंपली हमने डोंट लगा दिया इसके पहले। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट बिलीव सो, I don't hope so, I don't expect so, I don't imagine so, I don't suppose so। तो इस तरह से आप कह सकते हो। Will it rain? क्या आपको लगता है बारिश होगी? I don't expect so, या फिर I don't think so। And now, most important case, present tenses for future। Tenses हमने बहुत डिटेल में किए थे, अब थोड़ा सा हम फिर से एक बार देखेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट टेंसेस आर समटाइम्स यूज्ड टू रेफर टू द फ्यूचर। ये भी हम कर चुके हैं कि प्रेजेंट टेंसेस को किस तरह से कई बार हम फ्यूचर को शो करने के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम कुछ वैसा ही करेंगे, आफ्टर सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट, इनके बाद में, इन स्ट्रक्चर्स के बाद में। तो आप देखिए, जैसे है आई एम गोइंग टू मेक एन अर्ली स्टार्ट सो दैट आई डोंट और आई will not। आपको पता है will not की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाती है want, so that आप प्रेजेंट में इसको बोल सकते हो do not। so do ये प्रेजेंट की वर्ब होती है और will ये फ्यूचर की वर्ब होती है। आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। आई एम गोइंग टू मेक एन अर्ली स्टार्ट so that I don't या फिर I won't get stuck in the traffic। आप दोनों को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज वी ought to write to him। ought to is the milder and moral version of should। so we should write to him in order that he does not or he will not feel we are hiding things from him। कि हमें उसे लिख के सब बता देना चाहिए ताकि उसको ये फील ना हो कि हम उससे कुछ छुपा रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो he does not feel या फिर he will not feel, दोनों ही करेक्ट होंगे। ऐसे केसेस में कंफ्यूज नहीं होना कि क्या हम यूज करें, जो भी माइंड में आए आप वही यूज कर दो। नेक्स्ट इज we send them monthly reports in order that they may have full information about progress। और यहाँ पे जो may है ये इकलौता एक फॉर्मल वर्जन है, बाकी casually you can use any version। you can use present tense, the helping verb of present tense, you can use the helping verb of future tense, but if you want to be extremely formal, in that case you have to abide by the cases of may in case of present। और आपको पता है may का past हो जाता है हमारा might, इस पे हम आएंगे। तो इन एन इनफॉर्मल स्टाइल, जहां पे भी इनफॉर्मल स्टाइल की बात आती है वहां पे, यानी कि हम अमेरिकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, और जहां पे फॉर्मल हो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश वर्जन। सो इन एन इनफॉर्मल स्टाइल दैट कैन बी ड्रॉप्ड आफ्टर सो, यानी कि दैट को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। I have come early so I can talk to you। अब यहाँ पे so that को हमने इग्नोर कर दिया because we are talking about informal style here। so I have come early so I can talk to you, as simple as that। और अभी हमने present tense को यहाँ पे present और future दोनों को हमने यहाँ पे यूज करके देखा और ये भी देखा कि मीनिंग हमारा चेंज नहीं हो रहा था, बस जो may है ये फॉर्मल वर्जन्स में हम यूज कर रहे थे। नेक्स्ट में हम देखेंगे पास्ट स्ट्रक्चर्स। अब देखिए पास्ट है, देन यू ऑल नो दैट द पास्ट ऑफ विल इज वुड, द पास्ट ऑफ कैन इज गुड, द पास्ट ऑफ शैल इज शुड, एंड द पास्ट ऑफ मे इज माइट। सिमिलर है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल पास्ट में स्टार्ट हुआ है तो आगे हम पास्ट का ही कोई मॉडल यूज कर लेंगे। Mary talked to the shy girl so that she wouldn't feel left out। To feel left out यानी कि उसको अकेला ना महसूस हो वहां पे। So Mary talked because the sentence started in the past, that's why we continued it in its past version। अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते so that she will या फिर she won't feel left out।
वो इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज आई टुक माई गोल्फ क्लब्स सो दैट आई कुड प्ले एट द वीकेंड. अगेन वी हैव यूज्ड past tense here, past version of the verb took here, and to counter that one we used past version of can here. Next is they held the meeting on a Saturday in order that everybody should be free to attend. यानी कि आप यहाँ पे would भी ऐड कर सकते हो. आपने पढ़ा होगा मॉडल्स में कि should में और would में जहाँ पे फॉर्मल मीटिंग्स की बात आती है, फॉर्मेलिटीज की बात आती है, वहां पे इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता. तो यहाँ पे देखिए hold is the first form of the verb and held is the second and third form of the verb. So they held the meeting. That means clearly we are talking about past here. That's why we continued this statement in past as well. So whole populations of natives were wiped out in order that civilization might advance. So might is used when we want to use the formal style. बाकी सब सेम था इसमें. तो अब तक हमने ये सीखा है कि so और that की तो हम पेयरिंग करते ही हैं. ये हो गया फर्स्ट हाफ सेंटेंस का. सेंटेंस के सेकंड हाफ में आप प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हो, आप फ्यूचर टेंस भी यूज कर सकते हो. दोनों से ही हम नियर फ्यूचर को डिनोट करते हैं. आप यहाँ पे डोंट भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे वांट भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो. लेकिन ये तो हो गई हमारी प्रेजेंट या नियर फ्यूचर की बात. अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो वहां पे सो दैट की पेयरिंग तो रहेगी फर्स्ट हाफ में, या इन ऑर्डर दैट की भी हो सकती है. इन ऑर्डर दैट यूज करिए, चाहे आप सो दैट यूज करिए, दोनों सिमिलर हैं. और सेकेंड हाफ में यहाँ पे हम कोई पास्ट मॉडल ही यूज करेंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस जब पास्ट में स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे भी हम पास्ट मॉडल यूज करेंगे. यहाँ पे आप कुड, वुड, शुड और माइट को यूज करोगे. एंड नाउ लेट्स लर्न how can the structure of a sentence be affected if we start that particular sentence with so. A structure is possible with so at the beginning. So से हम स्टार्ट कर सकते हैं किसी सेंटेंस को with say, hear, understand, tell, believe and a number of other verbs, जैसे कि हम अभी पढ़ के आए हैं, देख के आए हैं. और हम कब यूज करते हैं स्ट्रक्चर को? when we want to know where does the speaker's opinion come from. स्पीकर जो है, जो स्पीकर का ओपिनियन है वो कहाँ से आ रहा है, या फिर क्या एविडेंस है इसका, किसने ये कहा है, कौन ऐसी बातें कह रहा है. तो उसके लिए हम सो को यूज करते हैं. आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे. इट इज गोइंग टू बी अ कोल्ड विंटर और सो द न्यूज़पेपर सेज. अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ न्यूज़पेपर से ये चीज आ रही है, तो हमने कह दिया सो द न्यूज़पेपर सेज. या फिर Mary is getting married. Mary is the name of a person obviously. So Mary is getting married. Yes, so I heard. हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है. तो अब यहाँ पे देखिए so. अब यहाँ ये एक पर्सन का आंसर था, तो यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग so से हो रही है. So I heard. So the newspaper says. प्रेजेंट आप पास्ट कैसे भी इसको यूज कर सकते हो. तो प्रोफेसर इज इल. उसके बाद में एक पर्सन कह रहा है, सेकंड पर्सन बोल रहा है सो आई अंडरस्टैंड, कि हाँ मैं समझती हूँ. सो आई अंडरस्टैंड. तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो बजाय कि इंफॉर्मेशन को रिपीट करने की. नेक्स्ट वर्जन इज सो एम आई, सो डू आई. इस तरह के भी आपने बहुत बार स्ट्रक्चर्स देखे होंगे. सो हैव आई, सो डू आई, सो डिड आई. तो ये हम कब यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं. वी कैन यूज सो विद सिमिलर मीनिंग टू ऑल्सो. यहाँ पे सो का मीनिंग ऑल्सो के सेंस में हम यूज करते हैं कि हाँ मैंने भी ऐसा ही किया है. अब देखिए लुइस कैन डांस ब्यूटिफुली एंड सो कैन हर सिस्टर. यानी कि लुइस तो डांस कर ही सकती है बहुत अच्छे से और उसकी सिस्टर भी ऐसा ही कर सकती है. सो कैन हर सिस्टर. तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि सो उसके बाद में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब
फिर कोई सब्जेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे। आप देख सकते हो so am helping verb and I. Similarly, so do is a helping verb and I is the subject here. I have lost their address. So have I. आप दो लोग कहीं किसी को ढूंढने गए हो, आपके फ्रेंड ने भी एड्रेस गुम कर दिया है और आप कहते हो मैंने भी कर दिया है गुम, मेरे से भी वो गुम हो गया है, तो आप कह सकते हो so have I. यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जो फर्स्ट हाफ में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उसी को हम यहाँ बीच में रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा so can her sister. I have lost their address. So have I. I was tired. And so were the others. अब यहाँ पे the others plural था, that's why we used were here, plural version here. तो अब देखिए was use हुआ था, so were the others, कि बाकी भी थके हुए थे. Next is I have a headache, so have I. तो बहुत ही easy था ये structure भी. And after a clause is a short part of a sentence and that's it. कुछ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें. So after a clause with no auxiliary verb, auxiliary means no helping verb, we use do, does or did. तो अब तक आपने एक चीज तो नोटिस कर ही ली होगी कि जितने भी हमारे सेंटेंसेस थे फर्स्ट हाफ पार्ट में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे थे, बी इट अ मॉडल, pardon my spelling, be it a model, जैसे यहाँ पे can को यूज किया गया था, और be and have इनको हम यूज कर रहे थे, मीन्स is MR, was were और have के केसेस को हम यूज कर रहे थे. सभी में फर्स्ट पार्ट में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन थी. उस केस में हम किस तरह से कहें जहां पे फर्स्ट पार्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब दे ही ना रखी हो, ऐसे केसेस में हम इन्हें यूज करते हैं. इफ अ हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, इन दैट केस वी कैन गो बाय डू, डज और डिड डिपेंडिंग अपॉन द टेंस ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, ही जस्ट वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर हिज कंट्री. अब यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. ही जस्ट वॉन्ट्स द बेस्ट, वो अपनी कंट्री के लिए हमेशा अच्छे से अच्छा चाहता है. तो अब आप किस तरह से कहोगे, हिटलर भी तो यही चाहता था, तो आप कहोगे सो डिड हिटलर, कि हिटलर भी तो यही चाहता था. तो यहाँ पे हमने डिड को यूज किया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो हमने डू, डज, डिड में से किसी एक को चूज कर लिया. नेक्स्ट सेशन में हम इन्वर्टेड सेंटेंसेस को देखेंगे अच्छे से, और वैसे देखा जाए तो सो एम आई, सो डू आई, ये भी इन्वर्जन का ही एक पार्ट है. तो अगर आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सेशन में इनको बहुत अच्छे से करने वाले हैं, डिटेल में हम करने वाले हैं. अभी आते वोकैबुलरी पे. आई कैन टॉक अबाउट मनी. इसमें आते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, हमने प्रीवियस सेशन में भी इसी को कंटिन्यू किया था. सो लैंड समबडी और योरसेल्फ इन समथिंग. इनफॉर्मल फ्रेजल वर्ब है ये, यानी कि खुद को या किसी और पर्सन को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल लेना. नेक्स्ट है ऑफ. ध्यान रखना ओ डबल एफ है यहाँ पे. ऑफ योर ऑन बैट. इफ यू डू समथिंग ऑफ योर ऑन बैट, इट इज योर आइडिया एंड यू डू इट विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स. कंप्लीटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंप्लीटली आपका आइडिया होता है ये, और आप इसको बिना किसी की हेल्प के करते हो. और ये जो वर्ड है, इसमें अगर हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन पे जाते हैं तो ये जो दोनों आर हैं इन्हें प्रोनाउंस नहीं ही किया जाता, इनकी साउंड इतनी नहीं आती. बट हम अगर अमेरिकन की बात करें तो वहां पे इसको प्रोनाउंस किया जाता है. तो आप कैसे भी इसको बोल सकते हो, आप कह सकते हो अ या फिर अर, दोनों आप यूज कर सकते हो. अर ऑन द साइड ऑफ क्वेश्चन मीन्स कि ज्यादा रिस्क ना लेना, केयरफुल रहना, वहां पे हम इसको यूज करते हैं. कॉशन. कॉशन होता है सतर्क रहना. नेक्स्ट इज हैव मनी और टाइम टू प्ले विद. दोनों को आप यूज कर सकते हो, टू हैव मनी टू प्ले विद और टू हैव टाइम टू प्ले विद, यानी कि एम्पल अमाउंट में. एम्पल मीन्स अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में आपके पास मनी या फिर टाइम होना. सो हैव इनफ मनी फॉर डूइंग
enough money or time for doing something. Next is as time goes by. हम हिंदी में कहते हैं ना जैसे जैसे टाइम बीतता है, उसी का इंग्लिश वर्जन ये है as time goes by, as time passes, जैसे जैसे टाइम बीतता है. नेक्स्ट है होल्ड ऑन टू, या फिर ऑन टू को एक साथ में भी लिखा जा सकता है, होल्ड ऑन टू समथिंग, यानी कि किसी चीज को अपने पास रखना, किसी और को ना देना या बेचना. नेक्स्ट है एड समथिंग ऑन टू समथिंग, किसी चीज को ऐड कर देना. बस ये बहुत सिंपल सा था. इंक्लूड समथिंग एक्स्ट्रा, जिसको हम अक्सर ऐड ऑन भी कहते हैं, ये एक नाउन की तरह यूज होगा, ऐड ऑन. नेक्स्ट इज कम टू समथिंग. हम कई बार क्या करते हैं, बिल को कैलकुलेट करते हैं, तो एंड में हम कहते हैं ना कि इतना टोटल हुआ है, एंड में ये पूरा यहाँ पे आके रुका है, तो वही इंग्लिश में हम उसी को इंग्लिश में ऐसे कहते हैं कम टू समथिंग, एड अप टू अ टोटल अमाउंट. फॉर एग्जाम्पल द बिल केम टू £50 और 50 पाउंड, यानी कि 50 पे पाउंड पे आके रुका है बिल. द बिल केम टू. नेक्स्ट इज बेयर फ्रूट, टू हैव अ सक्सेसफुल रिजल्ट. फ्रूट यानी कि हम इसको रिजल्ट के लिए भी यूज करते हैं बहुत बार. फल मिलना, हिंदी में भी हम कहते हैं ना अच्छा फल मिलना, तो रिजल्ट की ही बात हो रही होती है. सो बेयर फ्रूट मीन्स टू हैव अ सक्सेसफुल रिजल्ट. एंड नेक्स्ट इज with your eyes wide open और with your eyes open means आपको पता है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है सिचुएशन में, फिर भी आप उसमें जंप कर रहे हो. दैट मीन्स यू आर जंपिंग दैट इन दैट सिचुएशन with your eyes open. आपको उनके कॉन्सिक्वेंसेस का पता है. नेक्स्ट है पुट somebody of something. इसके 3 मीनिंग्स हो सकते हैं, तीनों को हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है The accident put her off driving, यानी कि किसी को किसी चीज से नफरत हो जाना, made her dislike it. तो यहाँ पे यानी कि जो एक्सीडेंट है उसने उससे जो लड़की थी उसकी नफरत करवा दी ड्राइविंग से. मीन्स एक्सीडेंट से वो इतनी शॉक में आ गई that she put her off driving, she started to dislike her driving. नेक्स्ट इसका मीनिंग हो जाता है इट्स टू लेट टू पुट हिम ऑफ, यानी कि पोस्टपोन या कैंसिल करने की टर्म में. इस तरह से भी हम इसको यूज करते हैं, पुट समथिंग ऑफ और पुट समबडी ऑफ. किसी चीज को, किसी इवेंट को या किसी पर्सन को थोड़े टाइम के लिए रोक देना वहां पे, या किसी इवेंट को कैंसिल या पोस्टपोन कर देना, किसी अरेंजमेंट को. सो डोंट पुल मी ऑफ व्हेन आई एम वर्किंग. और लास्ट का मीनिंग सिंपली डिस्टर्बेंस की सेंस में होता है कि मुझे डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट मत करो. डोंट पुल मी ऑफ व्हेन आई एम वर्किंग. अभी इन सभी को एक साथ में यूज करते हैं. सो द टाइटल ऑफ द पैसेज इज टॉप टिप्स फॉर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट. सो फर्स्ट इज डोंट इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड. अफोर्ड, जितना आप अफोर्ड नहीं कर सकते उससे ज्यादा इन्वेस्ट मत करिए. यू कुड लैंड योर सेल्फ इन ट्रबल. यू कैन गेट योर सेल्फ इन टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन. नेक्स्ट इज डोंट इन्वेस्ट ऑफ योर ओन बैट, यानी कि आप दूसरों से हेल्प लीजिए, आप अकेले ही अपने आप से ही बिना किसी की हेल्प के इन्वेस्ट मत करिए. इसका मीनिंग ये है सीक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइस फर्स्ट. किसी से हेल्प या एडवाइस जरूर लीजिए, अकेले अपने ही दम पे ऐसा कोई खतरा ना उठाइए. नेक्स्ट है और ऑन द साइड ऑफ कॉशन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू प्ले विद. अगर आपके पास बहुत ज्यादा ही मनी है कि आप उसको कैसे भी स्पेंड कर सकते हो, तो वहां पे भी यही कहूंगी दैट एर ऑन द साइड ऑफ कॉशन, कि वहां पे भी आप केयरफुल रहिए, आप ज्यादा रिस्क को मत लीजिए. नेक्स्ट इज डोंट लेट ऑल द जार्गन. जार्गन यानी कि लोकल जो भी आप सुनते हो अपने आसपास की जगहों पे, पुट यू ऑफ, कि आप लोगों की बातें सुन के किसी चीज को कैंसिल मत करना. और यहाँ पे pardon my spelling again here, कि आप कैंसिल मत करना. यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की बात कर रही हूं मैं, तो आप उसको कैंसिल मत करना. यू विल पिक इट अप. पिक इट अप यानी कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी एज टाइम गोज बाय, जैसे जैसे टाइम बीतेगा. नेक्स्ट इज वंस यू हैव बॉट स्टॉक्स, एक बार तुमने स्टॉक्स खरीद लिए, होल्ड ऑन टू देम फॉर अ वाइल.
तो किसी और को बेचना मत, अपने पास ही रखना कुछ टाइम के लिए. Fast trading can be expensive. Next is don't forget to add on the fees you will have to pay. लिस्ट में इसको ऐड करना, ये बहुत सिंपल था ऐड ऑन का. नेक्स्ट है दिस कुड कम टू 3 to 4%. तो लास्ट में जब हम टोटल करके लास्ट में इनको देखेंगे तो 3 to 4% बनेगा. नेक्स्ट इज डोंट एक्सपेक्ट योर इन्वेस्टमेंट्स टू बेयर फ्रूट इमीडिएटली. इमीडिएटली यानी कि तुरंत अपने रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट मत करना, अच्छे रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट मत करना. यू नीड पेशेंस. एंड द लास्ट एडवाइस इज रिमेंबर shares go down as well as up, so go into it with your eyes open. यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस सिचुएशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को जानते हुए आप वहां पे जाना. ऐसे नहीं है कि आप पहले चले गए, आपको अट्रैक्टिव लगा, फिर आपको पता चला कि प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं. अपनी आंखें खुली करके जाना. So guys, that was your today's session and this is going to be your today's task. So you have to complete the passage, and thanks for listening and just keep practicing.